Hello student, this is Sangeeta Vishwakarma. Welcome to all concepts of chemistry. So student, this is the second video of this chapter is matter around us pure. In first video, we have already covered a maximum topic. These were very important. That is what is true solution, then concentration of the solution, then types of the mixtures, heterogeneous mixture, homogeneous mixture, and so on, different colloids also, then types of the colloids, then suspension, example of the suspensions. Now this is a time for the second video in which we will complete a next topic. But before that, I am giving you activity. Suppose in a plate there are some beans plus rice and plus pulses. If they are mixed together, is the mixture. So how can you separate these? अगर आपको मिलाकर दे दिया जाए तो it is possible for you to separate all of them? Yes, your answer will be somehow you can separate them by hand picking. Hand picking. Another example, see, while making tea, it's a pan. The things you use for making tea, that is water, sugar, tea leaves, ginger, tulsi leaf, or add different flavor according to your taste, right? Then after that, when the tea is ready, what will happen? You pour the solution by this strainer into a cup, right? This strainer has small pores so that all the extraction of the tea will be in cup, and the residue part, what is the residue part? Tea leaves, ginger, tulsi leaf, or anything, any spice, any type of the spices we used in tea to make a taste different, all will be here in this strainer. So this method is known as filtration. This is another method in your day to day life कि आप मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं, right? But in chemistry term, there are some specific techniques which we use in different kinds of to separate different kinds of mixture. So in this topic, we will start a next topic, that is a different special technique to separate a component from the mixture, right? If you have not seen my previous video, I am gonna give you a link in description box. Just watch that one and come to this one. The first technique is evaporation. Evaporation, there should be two conditions. One component should be volatile solvent, and next one is non-volatile solute. Now we are taking example of ink. Ink may be blue or black. It's an experiment given in your NCERT, or you can say activity. Actually, this one is a beaker. It has water up to this brim, and this is a china dish. It's like ceramic pot. जो ceramic होता है ना, कप वाला जो हमारा मटेरियल होता है, that is a china dish, जिसमें हमने क्या रखा है? ink, right? And ये क्या है? Tripod. It is on tripod stand, and this one is flame. When you start to give a flame, or when you start to heat it, what will
happen after certain time, the water that is a volatile solvent, it will start evaporate from the ink. Evaporate. So by this evaporation, then it will be continue after certain time and then it will stop. जब ये रुक जाता है उस केस में क्या होता है, आपका जो रेजिड्यू फॉर्म है दैट विल बी ब्लू एंड ब्लैक इंक. जितना आपका वोलेटाइल सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, वाटर, तो वाटर क्या होगा, वाटर विल बी evaporate. All water will be evaporate from this china dish and the residue part, that is ink, will be in this china dish. Two questions आते हैं यहाँ से, पूछा जा सकता है इसे ब्रेन ट्विजर कि आपने चाइना डिश को डायरेक्ट हीट के ऊपर क्यों नहीं रखा. While you are using a beaker in which the hot water is there and on the top of that you kept china dish. The reason is that if अगर हम यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, सारा इंक बर्न हो जाएगा. So to prevent this burning हम क्या करते हैं, वाटर के ऊपर चाइना डिश को रखते हैं. और इस बाय दिस मेथड वी कैन इजिली सेपरेट ओनली टू, one is volatile and another is non-volatile solute by this method. It's very simple technique. Certification technique, basically our day-to-day life example is milk, right? We know about the different packets of the milk like full cream and toned milk and double toned milk, right? So on the basis of cream, these all are milk, but on the basis of the amount of cream present in these type of the packets, it three forms of the milk. One full cream means a totally maximum amount of cream and milk both are has in it. In toned milk, somehow some amount of cream is removed from this one, and in next one double toned means there is no amount of cream present in this type of milk. That means it's totally fat free, it has some amount of fat and it's totally completely milk with fat, right? So ये fat कैसे separate किया जाता है? Next example I am giving you from your day to day life. You have already seen this one. मम्मा जब आपका कर्ड में से, कर्ड को जब मम्मा चर्निंग करती हैं, आफ्टर दैट उसमें से क्या निकलता है, मक्खन. जो मक्खन है दैट इज ऑल्सो सेपरेटेड बाय ए सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक. अब देखते हैं कैसे फंक्शन कैसे होता है. मिल्क के अंदर दो कंपोनेंट हैं आपके, वन इज क्रीम and another is liquid part. Liquid part, you can say it's a milk, right? आप सेपरेट कैसे करते हैं? एक बॉल के अंदर आपने मिल्क को डाला. We can give you example by a curd. Now here is a curd, right? और कर्ड के अंदर we are putting a churning. It has a 3 or 4 blades like that. When it moves in this manner, this one and that one, and is left right, left right, left right. What will happen after 2 or 3 minutes or maybe more minutes? क्या होता है कि जो ये molecules हैं आपके कर्ड के, they're going to start churning, spawn हो जाते हैं. जैसे स्पन होते हैं, स्पन होने के बाद क्या होता है कि आपका जो क्रीम है, क्रीम पार्ट क्या हुआ आपका, चर्निंग करने से व्हाट विल हैपन, ऑल द क्रीमी पार्ट्स विल बी अपर साइड, इट विल बी अपर साइड और इट विल बी अ कॉर्नर साइड अराउंड द चर्निंग, राइट? एंड द ऑल द मट्ठा जिसे बोला जाता है छाछ, इट विल बी सेटल डाउन. Settle down means what? Because the molecule of this charge or this you can say buttermilk, this is also known as buttermilk. Buttermilk.
These buttermilk molecules are denser. Denser, you can say these densities are higher as compared to the मक्खन. मक्खन, राइट. तो जो मक्खन का जो पार्ट है उसके जो मॉलिक्यूल की डेंसिटी है वो डेंसिटी आपके बटर मिल्क के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी से कम है. तो आप कह सकते हैं मक्खन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मक्खन मॉलिक्यूल डेंसिटी इज लाइटर देन किसकी? बटर मॉलिक्यूल. बटर मॉलिक्यूल्स. तो डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो क्या होगा? बॉटम पे. और विच हैज अ डेंसिटी लाइटर इट विल बी अपसाइड. So after churning this by this centrifugation methods, all the butter will be a upper side, and after that you can easily remove by your hand. And same process is applied in the milk. आपने dairy milk देखा होगा, from where we can separate a cream, direct milk, because this process is done by the buttermilk, but this process is done by milk only. So that it's without doing anything, it's a full cream. If you do somehow, it's a ratio of the timing. टाइमिंग सेट है, जितना टाइमिंग आप करोगे उसमें क्रीम सेपरेशन उतना ही होगा. तो बाय दिस यू कैन टोन मिल्क कैसे बना सकते हैं? उसमें से फॉर ए सर्टेन टाइम और सर्टेन मिनट्स यू churn the churning or by this centrifugation methods, all the cream, all in tone, some milk will be upper side, and in double tone that completely जो cream है वो upper side आ जाती है और we can easily separate them. But it's a dairy process. Dairy process. Right. Principle: the denser part will be forced to the bottom and lighter part will be upside when spun rapidly. Right. Now see the application. अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं. फर्स्ट इट इज यूज इन डेयरी एंड होम. दिस टेक्निक is used to separate cream or milk, cream or butter. नेक्स्ट वन इज लेबोरेटरी पे जो ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं उनको डायग्नोज करने के लिए सेम टेक्निक यूज होती है, क्योंकि ब्लड के अंदर आपका टू कंपोनेंट्स मिलते हैं. वन इज लिक्विड एंड अनदर इज डेंसर सेल्स, जो सेल का जो पार्ट होता है. तो क्या किया जाता है, इस टेक्निक से उस लिक्विड पार्ट को सेपरेट किया जाता है और जो आपका सेल्स हैं, क्योंकि स्टडी तो सेल्स की होंगी, उन सेल्स को स्टडी किया जाता है. तो यूज्ड इन लैबोरेटरीज टू डायग्नोज या टू टेस्ट ब्लड और यूरिन बोथ. थर्ड वन इज टू स्क्वीज the water from the wet cloth. Wet clothes. सेम यही टेक्निक यूज होती है. आप उसमें भी सेम यही प्रिंसिपल है. वॉशिंग मशीन में आपका बड़ा सा कंटेनर होता है, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं. जब आप उसमें गीले कपड़े डालते हैं, व्हाट विल हैपन, उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है. देन आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन,
कि जितना भी आपके क्लोथ्स हैं, क्लोथ्स आर हैवियर एज अ वाटर, सो व्हाट विल हैपन, क्लोथ्स आफ्टर स्क्वीज they will set at the bottom and water will be out from these pores, right? So these applications which we use centrifugation at our home. Third technique is immiscible technique. Immiscible liquids. जब टू लिक्विड्स होते हैं और मोर जो कि इमिसिबल्स होते हैं, इमिसिबल यानी एक दूसरे में इजिली मिक्स ना हो, तो आप कह सकते हैं टू इमिसिबल या टू नॉन मिक्सिंग कंपोनेंट, ठीक है, इमिसिबल लिक्विड्स यानी टू नॉन मिक्सिंग कंपोनेंट. नाउ सी द सेपरेशन, बट बिफोर दैट आई टेल यू होम एग्जाम्पल. बहुत सारे हैं, जैसे आप ले सकते हो केरोसिन ऑयल प्लस वाटर, और आपने देखा भी हो किचन में तो जरूर देखा होगा. दूसरा ऑयल, एनी टाइप ऑफ द ऑयल प्लस वाटर. थर्ड आपने देखा होगा घी प्लस वाटर, और वाटर के अंदर कुछ बूंदे केरोसिन ऑयल या फिर आप देखो कुछ बूंदे मस्टर्ड ऑयल, जो भी आप यूज करते हैं, या घी कुछ स्प्रिंकल करके देखो, तो जो वो लेयर है ना वाटर उसकी ऑयल की या घी की, इट विल बी अपसाइड, ठीक है. तो ऐसे सब्सटेंसेस को आप कितना भी कोशिश कर ले, दे कांट मिक्स टुगेदर. सो फॉर दिस स्पेशल टाइप ऑफ द मिक्सिंग कंपोनेंट वी हैज अ special technique, that is immiscible liquid technique. See here, it's a separating funnel. Right, it's a stopper that is known as stopcock. It's a opening and here is a beaker, right? It contains a solution of two type of the immiscible substances. One is kerosene oil and another is water. This activity is also given in your NCERT. You can take oil and water also, ghee and water also, right? It's depend on you, but I am telling you kerosene oil and water. When you mix both the component together with lots of effort and don't disturb it for a long time and keep it in a separating funnel for a long time, so what will happen, there will be a two layer. This layer will be a water and this one will be a kerosene oil. Now question comes कि केरोसिन ऑयल आपका ऊपर ही क्यों लेयर बनाया और वाटर आपका नीचे. इट्स वेरी सिंपल. जो केरोसिन ऑयल है इसकी डेंसिटी मीन्स हिंदी में बोलते हैं घनत्व. जो डेंसिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो. द डेंसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल इज लेसर देन वाटर. सो जो भी आपका डेंसर पार्ट है, इट विल बी द बॉटम पार्ट, डेंसिटी ऑफ वाटर. तो हियर द वाटर इज अ डेंसर पार्ट, सो व्हाट विल हैपन, वाटर विल बी सेटल एट द बॉटम एंड आफ्टर सेटलिंग इट यू कैन सेपरेट इट केयरफुली बाय ओपनिंग अ stopcock and pour all the water in a beaker, but it should be very carefully, right? Now see the application. First application is same, to separate oil from water या water from oil, दोनों चीज सेपरेट हो रही है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज ये एक्सट्रैक्शन, आयरन की एक्सट्रैक्शन में भी हेल्प करता है. एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन from its ore. एक्चुअली जो ओर है और ये एक्सट्रैक्शन है, दोनों क्या है आपका एक लिक्विड फॉर्म में है दोनों. तो लिक्विड फॉर्म में होगा तो जो आपका स्लैग, जितना भी आपकी इम्प्यूरिटीज होंगी
दे विल बी अपसाइड ड्यू टू इट्स डेंसिटी डिफरेंस। और जो आपका आयरन आपका मोल्टन स्टेट में होगा, आपको ये आगे बढ़ोगे आप, जो भी हमारा एक्सट्रैक्शन होता है मेटल का किसी भी चीज का, वो सारा हमारा मोल्टन स्टेट में होता है, यानी लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, तो जब भी हम इसका एक्सट्रैक्शन करेंगे तो आपका स्लैग यानी जो आपकी इम्प्यूरिटीज, स्लैग यानी आपकी स्लग जो आपकी इम्प्यूरिटीज होती हैं, इम्प्यूरिटीज क्या हो जाती हैं आपकी फ्लोट करती रहती हैं लिक्विड पार्ट के ऊपर। और बाय दिस मेथड, दिस वन एंड प्रोसेस, वी कैन इजीली सेपरेट स्लग from a liquid iron or molten state. Next technique is fourth one, sublimation. Sublimation technique. Sublimation कौन सा, जितने भी सब्लिमाइज्ड आपके कंपोनेंट होते हैं, सब्लिमाइज्ड क्या कि आपका सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना। कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो अपनी बीच वाले स्टेट जो क्या है लिक्विड, पहले सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड से गैस में, वो लिक्विड में चेंज ना होकर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस स्टेट। These type of the components are known as sublimized component. So in that case, if you are taking two component, one is sublimized or another is non-sublimized. Now we are taking a salt, common salt, and plus ammonium chloride. Ammonium chloride. In that case, you can, how can we separate? It's not possible by hand picking or another thing, right? तो एक सेपरेट करने का मेथड है आपका सब्लिमेशन मेथड, जिसमें कि आपका वन कंपोनेंट इज सब्लिमाइज्ड और दैट इज नॉन सब्लिमाइज्ड। वो क्या करते हैं कि आपने एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया, यहां पर आपने क्या किया, फ्लेम रखा है, ठीक है, इसके ऊपर आपका चाइना डिश है, चाइना डिश के अंदर ये सोल्यूशन रखा है आपका सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड का, दैट इज अ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, नाउ कवर इट विद द हेल्प ऑफ द फनल एंड नाउ प्लग इट। इसको कॉटन से आपने कवर कर दिया। जब आप इसको फ्लेम से हीट दिए जा रहे हैं तो व्हाट विल हैपन, इट्स नॉट अ सब्लिमाइज्ड कंपोनेंट और सब्सटेंस, सो दैट इट विल बी रिमेन एज इट इज, एज इट हैज, राइट नाउ। बट हियर इज अ अमोनियम क्लोराइड which is sublimized component. When you start to heat, it's a solid form. When you heat it, so then it will convert it into direct gas. But here you are plugging it with the cotton. तो यानी कॉटन से आपने कवर कर दिया। अब गैस है, गैस ने क्या किया, गैस ने उड़ना शुरू किया और वो वहां से निकलने की कोशिश करेगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप इजिली यहाँ पर प्लग लगा सकते हो, यानी कॉटन से आपने बंद कर दिया तो ये जो है सॉलिड फॉर्म, ये यहाँ गैस की फॉर्म में जाएगी। व्हेन इट कूल डाउन देन इट विल बी अगेन यू कैन गेट इन द सॉलिड फॉर्म। अगर आपको सॉलिड फॉर्म में लेना है तो यहाँ पर व्हाइट 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 ये जम जाता है और आपका चाइना डिश में आपका सॉल्ट बचेगा। इसे हम लोग 9th क्लास में एक्टिविटी करने के लिए भी देते हैं बच्चों को। इट टेक्स 15 to 20 minutes, राइट। और if you want, if you don't want to collect in a solid form ammonium chloride, so again you have to open it। तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ से क्या होगा, सब्लिमाइज हीट लेगी, हीट के बाद सब्लिमाइज होना शुरू होगा तो यहाँ से निकल जाएगी। जो आपके पास फॉर्म होगी दैट इज ओनली सॉल्ट, राइट, और देन नाउ यू कैन सेपरेट इट। ऐसे बहुत जितने भी सब्लिमाइज्ड कंपोनेंट हैं आप उनको इस टेक्निक से, सब्लिमेशन टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आपका नैप्थलीन बॉल, नैप्थलीन बॉल्स लास्ट चैप्टर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये क्लोथ्स में रखा जाता है जिससे कि उन पे स्मेल ना हो जाए, ठीक है, कोई फंगस वगैरह ना लग जाए। सेकंड है इसमें आपका अमोनियम क्लोराइड हो गया, आपका कैम्फर,
आपने देखा होगा पूजा वगैरह में, जैसे उसको डायरेक्ट क्या करते हैं हम, सॉलिड से हीट किया और डायरेक्ट वो किसमें, गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। देन एंथ्रासीन भी इसका एक एग्जांपल है। थर्ड, एंथ्रासीन भी आपका सब्लिमाइज्ड सब्सटेंस है। तो दिस टेक्निक इज सब्लिमेशन टेक्निक। बेसिकली यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, आपको डिस्क्राइब करने के लिए कोई नहीं बोलेगा। एग्जामिनर कैन गिव यू एग्जाम्पल एंड आस्क बाय विच टेक्निक इट कैन बी सेपरेटेड। और जब भी यहां से सेपरेशन से आपका क्वेश्चन आएगा, 2 and 3 टेक्निक्स के बारे में पूछा जाए। नेक्स्ट वन इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा means color in Greek. So basically first time this technique was used to differentiate the color component, right? कि जो different, you know, the color is a mixture or dye, you can say dye or color, कोई भी color है, it's a mixture of 2 or more color, 2 or more colors, ठीक है। तो कलर इज मेड बाय ब्राउन कलर, किसका कॉम्बिनेशन, रेड प्लस ब्लैक एंड प्लस ग्रीन। इट डिपेंड्स द डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ द कलर कंपाउंड, राइट। सो ये बेसिकली क्या है कि एक पर्टिकुलर, अगर मैं एक स्ट्रेन लूं ब्राउन कलर का, तो in this particular color how many different kinds of colors are present, that means a single color is made by 2 more colors and it's look like a single color। तो ये कलर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। इनिशियली ऐसा ही था। सी द प्रोसेस, इट्स अ जार, इट कंटेन्स अ वाटर, right, this level, and this is a road, it's a jar, और वो क्या कर रहा है, यहां पर है आपका वाटर स्ट्रिप, पेपर स्ट्रिप, सॉरी, पेपर स्ट्रिप, राइट। एट दिस लेवल मार्क हेयर, स्ट्रेन अ कलर, एनी कलर, राइट, and now it will start to absorb the water from the jar. Then after some time the water level will rise up. कोई भी चीज है अगर वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, the water level will be rise up, यानी जो एब्जॉर्प्शन है धीरे 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 अप टू द ब्रिम, अब यहां तक चला जाएगा। नाउ सी कि जो इसमें कलर है, मैंने एग्जांपल दिया था आपको एक ब्राउन कलर का, कि ब्राउन कलर कंटेन्स ग्रीन, रेड एंड ब्लैक कलर। सो इन सिमिलर वे इफ इट कंटेन, आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ ब्राउन वन, तो इट कंटेन्स 3 डिफरेंट कलर। तो यहां से हम ये पता लगा सकते हैं कि एक डिफरेंट कलर जो है उसमें कितने कलर्स का कॉम्बिनेशन है। आई एम सेइंग यू अगेन, अ सिंगल कलर प्रेजेंट हेयर, by this chromatography we can differentiate how many colors it contains। तो जैसे जैसे वाटर लेवल इंक्रीज, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे कलर आपको दिखाई देंगे इस तरह से, राइट। अब सी हाउ, विच कलर इज मोर सोल्यूबल इन वाटर will rise up first। तो you can say more soluble in water, क्या color will rise up early। जितना वाटर सोल्यूबल होगा, इंक्रीज को राइज से दिखा दिया है, राइज अप, और यू कैन, आप ऐसे लिख लो राइज अप, यानी जो आपका मोर सोल्यूबल कलर होगा वाटर के अंदर वो सबसे पहले राइज करेगा, फिर देन देखा जाएगा, मतलब इनकी सोल्यूबिलिटी के ऊपर यू कैन डिफरेंशिएट, और एक इस तरह का इस पे कलर एक पैटर्न दिखाई देगा, तो जिससे आपको पता चल जाएगा इट कंटेन्स हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर।
So now what is a chromatography? It's a technique. It is a technique to separate the components of color from the mixture. यानी एक मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स है कलर का, उसको सेपरेट करने के लिए इस टेक्निक का यूज होता है. ठीक है. अब नाउ सी इसका एप्लीकेशन क्या है. एप्लीकेशन देखने के लिए यानी कहाँ कहाँ यूज होता है. फर्स्ट जो मैंने अभी बताया है, कलर से इनिशियली जो क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट हुआ था वो हुआ था आपका कलर पिगमेंटेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए. राइट. सो फर्स्ट टेक्निक है कलर्स सेपरेशन के लिए. ठीक है. दूसरा कुछ पिगमेंटेशन के लिए. पिगमेंटेशन फ्रॉम नेचुरल, यानी नेचुरल थिंग. आपको पिगमेंटेशन आपको सेपरेट करना है किससे? नेचुरल कलर से. पिगमेंट माने भी कलर ही होता है. नेचुरल कलर से. थर्ड टेक्निक क्या है आपका इसका? ड्रग्स को ब्लड से सेपरेट करने के लिए यूज होता है. तो इट इज यूज्ड to separate drugs from blood. These are the applications of the chromatography. Next technique is distillation. In distillation we separate two miscible substances. यानी जो दो सब्सटेंसेस हैं जो एक दूसरे में इजिली मिसिबल हो. यानी इट इज यूज्ड टू सेपरेट द टू मिसिबल substances. और या you can say components. ठीक है. अब यहां पे एक स्ट्रैंड है, इसको बोलते हैं राउंड बॉटल. ठीक है. ये स्टैंड पर ये है ट्राइपोड स्टैंड. नीचे फनल है और इसके अंदर मिक्सचर है आपका एसीटोन और प्लस वाटर. किसका है? एसीटोन एंड वाटर. ठीक है. अब दो सब्सटेंस ये दोनों लिक्विड फॉर्म में है और इजीली एक दूसरे में मिक्स भी हो जाते हैं. लेकिन यहां पर मिसिबल सब्सटेंसेस को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? इट्स अ डिस्टिलेशन टेक्निक इफ बोथ द कंपोनेंट हैज अ डिफरेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट. आई एम यूजिंग हियर एसीटोन बॉइलिंग पॉइंट इज 56.05 समथिंग डिग्री सेल्सियस एंड वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस. इट्स अ मिक्सचर of both of them we are putting here and now start to lit it. right. तो जैसे boiling point पे पहुंचेगा, now using here a thermometer so that we can easily differentiate which one is boiling now. right. It's a thermometer. When you start to heat it, then measure here the temperature is around 50 to 56, say 55. Then there is a vaporization of a single component, right? And you know which one will be boiled first, which has lower boiling point. और lower boiling point किसका है इसमें? एसीटोन का है. तो जैसे ही 56 के आसपास टेम्परेचर गया,
जाते ही ये क्या हो गया, स्टार्ट होना, बॉयल होना शुरू हो गया। यहां पर मैंने इसको कूलर किया है, कूलर गिविंग बाय, क्या है इसको, आइस बाथ, आइस बाथ। दैट मीन्स यहां पर मैंने एक बर्फ का एक राउंड, उसको एक आइस बाथ दिया है, बिकॉज यहां से क्या है, वेपर आ रहे हैं, वेपर को हमने कंडेंस किया है, ये कंडेंसर है जो इसको कंडेंस कर रहा है। कंडेंस होने के बाद वेपर इज गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू अ लिक्विड, एंड नाउ यू कैन कलेक्ट दिस miscible substance into beaker, right? I'm telling you again, if both the miscible substances are mixed together, then you can separate if you know the boiling point of both of them easily. And second thing, there should be a difference between the boiling point. It must condition boiling point difference should be here, right? Because here is around 45 degrees Celsius, around 45 degrees Celsius difference. So after measuring the temperature of this round bottle liquid, you can easily differentiate. Now the vapor is acetone, and then acetone is going through by this rod, and there is a condenser which is cool down these vapor into liquid, and now you can easily collect them. Is it clear? Next one is fraction distillation. Fraction means part, part में distillation करना. Differentiate two miscible substances or component, those have less than 25 Kelvin temperature. यानी by this technique we can separate components, or you can say miscible component, miscible components, those have difference in boiling point less than 25 केल्विन। यानी यहाँ क्या है, पहले वाले में टेम्परेचर, उनके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस था दैट इज मोर, बट यहाँ जिनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम। Now see, it's completely total setup of fraction distillation. This is a distillation flask in which the mixture is contained, and this one is a thermometer, and this one is fraction column, and this is water outlet. यानी हमने कंडेंसर लगाया हुआ है, कंडेंसर जो हमने पहले यूज किया था, कंडेंसर लगाया है जिसमें यहां से एंट्री क्या हो रहा है, cold water entry, and after giving the coolness to this process, and there is a outlet of the hot water. Yani whenever any cold water come in a contact of the hot thing, it will get an energy, and then it's out from this part, that is a water outlet, right? And main important thing is difference between distillation and fraction distillation is between distillation flask and condenser there is a fraction column, right? Up see here, it contains a small balls. These are nothing, these are the glass balls, or you can say आपने कंचे देखा होगा, these are like that, right? When we start to boil this mixture, it will start to evaporate, right? इसमें वेपर बनना शुरू हुआ। जैसे ही वेपर बनना शुरू हुआ तो यहां से, क्योंकि दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है, बहुत कम होने की वजह से यहां से दोनों वेपर की फॉर्म में निकलना शुरू होंगे। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है, वो क्या होगा, वो जल्दी इवेपोरेट होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो कम होगा। दोनों थोड़ी बहुत, क्योंकि कॉन्स्टेंटली क्या है, यहां से बर्नर बनाना भूल गई थी,
यहाँ से हीट जा रही है, ठीक है ना। जैसे ही हीट गई तो क्या हुआ, जो आपका जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो क्या करेगा, यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। जैसे ही निकलेगा तो यहाँ पर ग्लास बीड्स हैं, ग्लास बीड के सरफेस पर आकर ये इसको कूल करने के लिए रखा हुआ है। तो वो जो वेपर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि उसे भी इतना हीट नहीं मिला, सो दैट इट कैन इजीली totally converted into vapor rather than which has a smaller boiling point। तो क्या होगा, वो इस सरफेस पर जाकर वो इस पे स्टिक हो जाएगा, ठीक है। और जो ये वेकेंट थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्पेस है, यहां से केवल वही वेपर बनकर जाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर था, ठीक है। देन लोअर होकर वो इसमें आया, इस ट्यूब में आया। यहां पर हमने कंडेंसर लगाया हुआ है। कंडेंसर, व्हाट इज द वर्क ऑफ कंडेंसर? इट इज गिविंग अ कोल्ड वाटर टू दिस वन एंड now it's absorb this area absorb the heat of this vapor and help to cool down it, right? So from there the cold hot water is removing, yani hot gas is removing from here, you can say hot water from this one in cold water and hot water। तो उसमें पूरा बैलेंस हो रहा है और ये पूरा कूल डाउन हो गया। आफ्टर कूल डाउन दिस वन, this vapor converted into liquid and now this is a pure liquid component। So one thing is important, why we are using these glass bowls, these because these are providing a surface area to that component which has a more boiling points, so that they can easily stick to this one and it will easily remove from here the component that has lower boiling point। Is it clear? Next one is air separation, air gases separation। Similar method, that is fraction distillation। क्या होता है? Air is a mixture of the homogeneous gases, it's a mixture of homogeneous gases, right? तो क्या होता है, उसमें प्रेशर को इंक्रीज किया जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज किया तो कंप्रेस्ड हो गया एंड देन क्या हुआ, टेम्परेचर को डिक्रीज किया, so that they can be convert all the gases converted into liquid and then this liquid is also separated by through this method। जब वो कंप्रेस्ड करके उसको कूल डाउन कर दिया, gas is totally converted into liquid and then liquid by same procedure we can separate it by, because all the gases have a different boiling point। Next one is crystallization। It is the process of the process that separates a pure solid in the form of crystal from its solution। यानी एक सोल्यूशन है जिसमें से आपके क्या है, क्रिस्टल की फॉर्म। क्रिस्टल जैसे शुगर है, ठीक है, बेसिक एग्जांपल देखिए, शुगर है और सॉल्ट है, तो वो कैसी फॉर्म में होते हैं, आपके बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में तो नहीं होते ना। तो कुछ क्रिस्टल्स, यानी आप बोल सकते हैं कुछ इरेगुलर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल का एक अरेंजमेंट है। दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ द क्यूब, they may be in other form, but it's a accumulation of the small particles in the form of the cube or different types of the geometry or a shape, right? तो आप इस टेक्निक का यूज हम करते हैं आपका जो सॉल्ट है, सॉल्ट को सेपरेट करने में सी वाटर से, ठीक है। अब बेसिकली ये जो एक्टिविटी है हम 9th क्लास में कराते हैं, जिसमें आपको क्रिस्टल फॉर्मेशन करना है। कैसे? अब कुछ चीजें हैं इसमें जो हमें याद रखनी है। सबसे पहले
विल टेक अ ट्राइपॉड स्टैंड एंड यहां लेंगे एक बीकर, राइट, फिल विद इट वाटर। नाउ स्टार्ट टू हीट इट, बर्नर लगा दिया हमने, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये एक्टिविटी जो क्लास में हम लोग कराते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कराते हैं, कॉपर सल्फेट सॉलिड से, ठीक है। इस पानी में जो ब्रिक तक है इसमें हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट सॉल्ट डाल दिया इसमें, इट्स अ बेसिकली सॉलिड सॉल्ट, राइट। सॉल्ट डाला और हम इसमें डालने के बाद ये हीट होना शुरू हो गया, पानी हीट होने के बाद हमने इसमें 1 स्पून डाल के देखा, इजली मिक्स हो गई, ठीक है। फिर दूसरी स्पून डाली, वो इजली मिक्स हो गई, तीसरी स्पून डाली, ये प्रोसेस चल रहा है, हीट इज कॉन्टिन्यूसली स्टार्टिंग, राइट। उसके बाद फिर हमने थर्ड स्पून डाली, क्या होगा, when we are putting again and again in this some amount of the salt, तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर ये सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, राइट। सो दैट इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? एट द कंडीशन when no more solutes can dissolve in water। तो कौन सी फॉर्म होती है? I'm writing here, no more solute dissolve in solvent। सॉल्वेंट क्या है आपका? वाटर है, ठीक है। एंड सॉल्यूट कॉपर सल्फेट सॉलिड, राइट। अब ये एक्सपेरिमेंट आप किचन में भी देख सकते हैं। मम्मी ने शरबत बनाने के लिए दिया और मम्मी ने बोला कि शरबत बना दो, ठीक है। आपने 1 ग्लास पानी लिया, देन यू आर पुटिंग 1 स्पून ऑफ शुगर और उसको स्टर किया, वो उसमें मिक्स हो गई। अब आपको कुछ और मिक्स करना है, पानी यानी शुगर और ऐड करना है। जैसे शुगर ऐड होगी तो ऐसा होगा कि अब शुगर इतना इजीली ऐड नहीं होगी उसमें जैसा पहले आपने ऐड किया है, और एक ऐसे टाइम आएगा शुगर उसमें डिसॉल्व होना बंद कर देगी। समटाइम देखा हो ग्लास की बॉटम में बैठ जाती है, ठीक है, इट इज सेटल डाउन एट द बॉटम। तो दैट मीन्स वो सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है। अब नाउ वी कैन चेंज कि आप जो सैचुरेशन पॉइंट है हम उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा, जो सैचुरेटेड सोल्यूट पॉइंट है ना, सैचुरेटेड पॉइंट वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इस आपने देखा होगा अगर वो उसमें शुगर नहीं घुल रही है, आप उस पतीले को या उस ग्लास को पतीले में ट्रांसफर कर कर और उसमें और शुगर मिला दीजिए और आप उसको गर्म कर दीजिए। जैसे ही आपने गर्म किया उसको, तो गर्म पानी में क्या होगा, आपका जो शुगर है वो उसमें इजिली डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो सैचुरेटेड जो क्या है पॉइंट उसका, इसको बोल सैचुरेटेड पॉइंट विल इंक्रीज, राइट। सेम हियर, हमने इसको इसके ऊपर रखा है, क्यों गर्म क्यों करे जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि वी वांट टू गेट अ सैचुरेटेड solution of water and copper sulfate. Now after when this copper sulfates is not mixing at that stage, this copper sulfate is not going to mix in this solvent or in this solution. So क्या करोगे आप, फ्लेम को ऑफ कर दोगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद now see if some impurities are upsides, then you can separate by filter paper or anything, right? Then after that कीप इट कूल डाउन फॉर 1 डे। क्या करना है, 1 डे के लिए रख देना है, ठीक है। 1 डे के लिए कीप एज इट इज, कीप एज इट इज, ठीक है। जब नेक्स्ट डे आप स्कूल में आओगे तो क्या देखोगे, आपने जो बॉटम है, बॉटम पे कुछ क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दे मे बी अ डिफरेंट फॉर्म, यानी जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो क्या हुआ, एक्यूमुलेट हो गए और उन्होंने कुछ शेप ले ली है, जैसे चीनी के, शुगर के क्यूब्स होते हैं, ठीक है। आई विल गिव यू पिक्चर हियर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी इन योर माइंड कि हमने जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो अमाउंट हमने ज्यादा ली है, बट जो क्रिस्टल फॉर्मेशन है वो क्रिस्टल फॉर्मेशन एज कंपेयर टू द रॉ मटेरियल
आर नॉट एनफ. वाई? रीजन ये है कि हम जो भी सोल्यूशन में हमने जो सॉल्ट लिया है, राइट, दैट इज नॉट कंप्लीटली प्योर. इन सोल्यूशन two things are there. One is impurities and another is pure form, that is salt, right? जो हमने salt डाला है, salt contains impurity and pure form. तो and impurities are more soluble, so that's why they settle at the bottom, or you can say they are dissolved in solution. और जो pure form है आपका, this is not soluble in water, so that's why it comes in the form of the crystals, right? So today topic is almost completed. और जितना भी जो स्पेशल टेक्निक्स थी फॉर सेपरेशंस ऑफ मिक्सचर्स सारा डन हो गया है. नॉर्मली सब रह गई हैं जो फ्यू है, जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन. कुछ भी मिक्सचर आपको दे दिया, उसमें अगर मैग्नेट मिक्स हुआ है देन यू कैन सेपरेट बाय इजली magnet, or this process is known as magnetic separation, right? So these जो techniques है, these are very important. अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पर डायरेक्ट किसी टेक्निक को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं देगा. क्वेश्चन ओनली आता है बेस पर ऐसा कि आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन किस टेक्निक से सेपरेट करते हो, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल. देन आ जाएगा कि आप मक्खन किस टेक्निक से निकालते हो. तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जनरल. इतना टफ इसमें कुछ भी नहीं आता, बट हाँ इम्पोर्टेंट है. और आई होप आपको मज़ा भी आया होगा. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई हैं, राइट? सो नेक्स्ट टाइम देखते हैं. शायद फिजिक्स मैं शुरू करने जा रही हूँ, बिकॉज आई सॉ मैनी कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स कि मैम प्लीज़ फिजिक्स स्टार्ट कीजिए. सो विल ट्राई एंड आई होप आपको आज का पढ़ा हुआ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. लाइक क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल एंड क्लियर समझ आ गया होगा. अगर आपको अच्छा लगा, समझ आया, तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन. और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और हाँ एक चीज़, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. टिल देन, take care, keep watching and keep learning. Thank you very much.